Welcome to Sharadvi More English School online lecture. Good afternoon, student. Yesterday we have studied about the evidences of evolution. In that we have studied about the morphological evidences. In that we observe the similarities of the external appearance of the animal as well as plants. Second thing, we have seen the anatomical evidences. In that we study about the similarity in the internal bony structures, but their functions are different. And third thing that we have seen is the vestigial organ. Vestigial organs are those organs which are useful in some living organism, but same time it is not useful for the some animals. Now, fourth evidence that we have to study is the paleontological evidences. Now, under the paleontological evidences, we study about the fossils of the प्लांट्स एंड एनिमल्स. क्या स्टडी करते हैं हम लोग? फॉसिल्स ऑफ द प्लांट एंड एनिमल्स के बारे में स्टडी करते हैं. ओके, अब ये उनके फॉसिल्स जो रॉक्स होते हैं उस रॉक में प्रिजर्व रहते हैं, और जो एनिमल्स सबसे प्राइमेटिव टाइप का होता है, जो सबसे ज़्यादा एंशियंट टाइम का होता है, वो जो है रॉक में सबसे लोअर जो पोर्शंस होता है उसमें वो मिलता है. ओके, तो नाउ सी the fossils. Okay, before that 1.8 sedimentary rocks and fossils. अब यहाँ पे आपको sedimentary rocks और क्या दिखाई दे रहा है? Fossil. In that fossil rocks we observe the snail and starfish like animals. It means on the earth the snails and starfish like animals came into existence first, and then we observe the fishes like animals. Means from the snails and starfish, the fishes like animals were evolved, and then amphibians were evolved. After that, reptilians evolved, and then apes, mammals, these animals are evolved. So, this helps us to study, to know that which animal evolved from which animals. इससे हम लोगों को ये पता चलता है. Okay, now let's read. A question may arise in your mind that which organism existed millions of the years ago. ओके, तो हम लोगों के माइंड में कौन सा क्वेश्चन अराइज होता है, कौन सा क्वेश्चन हमारे माइंड में ये आता है कि विच एनिमल और विच ऑर्गेनिज्म एग्जिस्टेड मिलियंस ऑफ ईयर एगो. कौन सा एनिमल मिलियंस ऑफ ईयर पहले प्रेजेंट था, एग्जिस्टेड था. नाउ द सीक्रेट हैज बीन हिडन इन द अर्थ. अब कौन सा एनिमल मिलियंस ऑफ ईयर था पहले, वो उसका सीक्रेट, उसका रहस्य जो है अर्थ के अंदर हिडन है, छुपा हुआ है. लार्ज नंबर ऑफ ऑर्गेनिज्म गेट बरीड ड्यू टू डिजास्टर्स लाइक फ्लड, अर्थक्वेक, वोल्केनो एक्सेट्रा. अब एंशियंट टाइम में लार्ज अमाउंट ऑफ द ऑर्गेनिज्म, प्लांट एज वेल एज एनिमल्स, गॉट बरीड. उसमें उन लोग क्या हो गए थे? दफन हो गए थे. अब उस किसकी वजह से दफन हो गए थे, बरीड हुए थे? बिकॉज ऑफ द डिजास्टर्स लाइक फ्लड, जैसे कि फ्लड जैसे डिजास्टर, अर्थक्वेक एंड वॉल्केनोज. ये डिजास्टर्स में ये एनिमल अर्थ के अंदर बरीड हो गए, दफन हो गए. एंड रेमनेंट्स एंड इम्प्रेशन ऑफ द सच ऑर्गेनिजम्स रिमेन प्रिजर्व्ड अंडरग्राउंड. और इनके रेमनेंट्स और इम्प्रेशंस अर्थ के अंदर जो है प्रिजर्व्ड हो गए. दीज आर कॉल्ड एज द फॉसिल्स. और यही जो उनके रेमनेंट्स है, जो बचे हुए पार्ट्स को क्या बोलते हैं? रेमनेंट. तो जो रेमनेंट्स थे उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? फॉसिल्स. स्टडी ऑफ फॉसिल्स इज एन इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ द स्टडी ऑफ इवोल्यूशन. अब जो स्टडी करना फॉसिल का, ये एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट होता है इवोल्यूशन की स्टडी के लिए. Carbon consumption of the animal and plants stop after the death, and since then only the decaying presence process of the C14 occurs
continuously. Okay, we know that in the nature there are the types of the carbon isotopes. One is carbon 12 and second is carbon 14. Now in the nature, C14 found in the abundant quantities, in huge quantities, but C14 are found in limited quantity in each and every living things. So in case of dead bodies of the plant and animal, instead of remaining constant, in case of the dead bodies of the plant and animals, instead of remaining constant, the ratio between the C14 and C12 changes continuously as C12 is non-radioactive. अब जो ह्यूमन बींग और जो अदर एनिमल्स एंड प्लांट है, उनके बॉडी में ये जो कार्बन 14 और कार्बन 12 फूड के थ्रू एंटर करता है। एंड आफ्टर द डेथ ऑफ द प्लांट एंड एनिमल्स, जो प्लांट और एनिमल की डेथ हो जाती है, उसके बाद जो इनका रेशो जो होता है C14 और C12 का चेंज होता है। तो इन दिस टू द C14 इज रेडियो एक्टिव एलिमेंट, इसमें से दोनों में से C14 रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स है दैट डीकेज, जो क्या करता है, डीके होता है। द टाइम पास्ट since the death of the plant or animal can be calculated by measuring the radioactivity of the C14 and ratio of the C14 to C12 present in their body. As time passes, जैसे जैसे टाइम पास होता है, जैसे जैसे टाइम बीतता है, टाइम पास होता मीन्स टाइम बीतता है, बिकॉज ऑफ रेडियो एक्टिविटी ऑफ द C14 इट डीकेज, वो क्या होता है, डीके होता है, and ratio of C14 to C12 changes. Now calculating the ratio of C14 and C12, it can be predicted that the given fossils or any old articles is how many years old, कि वो कितने साल पुराना है, ये हम लोग क्या कर सकते हैं, फाइंड आउट कर सकते हैं, प्रिडिक्ट कर सकते हैं। एंड दिस टेक्निक इज कॉल्ड एज द कार्बन डेटिंग मेथड, और इसी टेक्निक को क्या बोलते हैं, कार्बन डेटिंग। It is used in the paleontology and anthropology for determining the age of the human fossils and manuscripts. अब ये जो पैलियंटोलॉजी और एंथ्रोपोलॉजी जो साइंस के दोनों ब्रांचेस है, इसमें ह्यूमन बीइंग की फॉसिल्स का एज, उसकी उम्र कितनी है, कितना साल ओल्ड है, एंड जो मैन्युस्क्रिप्ट्स होते हैं उसकी एज फाइंड आउट करने के लिए यूज करते हैं C14 एंड C12 के रेशियोज को, जिसको हम क्या बोलते हैं, कार्बन डेटिंग। Once the age of the fossils been determined by such technique, it becomes easy to deduce the information about other erstwhile organisms. It seems that vertebrates have been slowly originated from the invertebrate. अब ऐसा सीम होता है कि जो वर्टिब्रेट्स है वो इनवर्टिब्रेट से इवॉल्व हुए। जो जितने भी वर्टिब्रेट्स हैं वो किससे इवॉल्व हुए हैं, इनवर्टिब्रेट से, जितने भी इनवर्टिब्रेट एनिमल्स थे। अभी आपने देखा ये 1.8 में इनवर्टिब्रेट एनिमल, स्नेल एंड स्टारफिश। आफ्टर दैट you have seen the fish like animals, and then amphibian, and then reptilian, and then apes and mammalians. Now introduction to scientist. Okay, carbon dating method given by the scientist Willard Libby. ये किसने ये डेवलप किया मेथड, विलार्ड लिब्बी, एंड ही हैज़ बीन अवॉर्डेड विद द नोबेल प्राइज इन 1960 फॉर दिस इन्वेंशन, और इस इन्वेंशन के लिए उनको नोबेल प्राइज मिला in 1960. The age of the materials determined by this method are published in the journal Radiocarbon. और इस मेथड से ओल्ड थिंग्स की एज कैसे फाइंड आउट करते हैं वो पब्लिश्ड हुआ, और उस जिसमें ये पब्लिश्ड हुआ उसका नाम जो है रेडियो कार्बन है। तो यू हैव टू रिमेंबर दिस। ओके, इन विच ईयर he was awarded the Nobel Prize? So you have to remember that in 1960
And for which invention? For the carbon dating method to find out the age of the old things. And now the last evidence, that is the connecting links. अब हम लोगों को क्या देखना है? Fifth one, second last evidences in your syllabus, connecting link. Now what is meant by the connecting link? So those animals which possess the characteristic features of the two groups, two species, called the connecting links of that two species. उन दोनों species का वो उसको क्या बोलते हैं? Connecting links. Now see the examples of the connecting links: duck bill platypus, lungfish, and peripatus. So we will study about these three animals that connect the two different species and their characteristics. Some plants and animals show some morphological character by which they can be related to the two different groups. Hence, they are called a connecting links. Some plant and animals show the character of the two groups. That's why they are called as the connecting link. Example: in peripatus, characters like segmented body, thin cuticle, and parapodia like organs are present. अब ये जो peripatus है, this bear the characters of the parapodia. And what are that characters? Segmented body, thin cuticle, and parapodia. Similarly, these animals show the tracheal respiration and open circulatory system similar to the arthropoda. जो पेरिपेटस है, ये पेरिपेटस में कौन कौन सी कैरेक्टरिस्टिक प्रेजेंट है? सेगमेंटेड बॉडीज, क्यूटिकल एंड पैरापोडिया, एंड tracheal respiration and open blood circulatory system, and this property present in the arthropoda. This indicate that peripatus is the connecting link between the annelida and arthropoda. So segmented body, thin cuticle, and parapodia are the features or characters of the annelida, and tracheal respiration and open blood circulatory system is the property of the arthropoda. So it means peripatus connects the arthropoda as well as annelida. Similarly, the duck-billed platypus lays eggs like it lays eggs like reptilia, but shows the relationship with the mammals due to presence of the mammary glands and hairs. अब जो सेकंड एनिमल्स है जिसका नाम क्या, डक बिल्ड प्लेटिपस, तो इट हैव द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द reptiles. Okay, and what is that characteristic? Giving the laying the eggs देना, and it bears the mammary gland, that is property of the mammals. So it have the two groups characteristic. One is from the mammalian group and second from the reptiles. Now third animals about the lungfish. Lungfish perform the respiration with the lung is irrespective of being fish. अब हम लोगों को मालूम है इसका नाम क्या है, लंगफिश. तो ये फिश है. ओके, तो फिश कैटेगरी के फिश जो होती है, दे टेक द डिजॉल्व ऑक्सीजन विद द हेल्प ऑफ देयर गिल्स. वो क्या करते हैं? डिजॉल्व ऑक्सीजन एब्जॉर्ब करते हैं, और किसकी हेल्प से? गिल्स की हेल्प से. बट दिस लंग फिश रेस्पायर यूजिंग द lungs. That's why it bears the characteristic of the amphibians as well as the mammalians. This example indicate that mammals are evolved from reptiles and amphibian from the fishes. इस एग्जाम्पल से, इन तीनों एग्जाम्पल से हम लोगों को ये समझ में आता है कि जो मैमल्स है वो रेप्टाइल से इवॉल्व हुए और एम्फीबियन जो है फिशेस से इवॉल्व हुए. नाउ
last evidence that you have to study is the embryological evidences. क्या है ये? embryological evidences. अब यहाँ पे क्या दिया है? एम्ब्रियो. अब व्हाट इज एम्ब्रियो? ओके, एम्ब्रियो है क्या? ओके, जो अर्ली स्टेजेस होता है डेवलपमेंट का बिफोर टेकिंग द बर्थ. ओके, बर्थ लेने के पहले का जो स्टेजेस होते हैं. ओके, जो एनिमल्स गिविंग द बर्थ टू द यंग वंस एंड बिफोर टेकिंग द बर्थ, दैट पीरियड इज कॉल्ड द एम्ब्रियो, एम्ब्रियोनिक स्टेज. उसी को हम क्या बोलते हैं? एम्ब्रियोनिक स्टेज. तो हियर we have to observe the embryos of the different animals. Okay, now look carefully. See the first one. This is the embryo of the fish. ये जो पहला वाला जो है first one, this is the embryo of the fish. Second one is the embryo of the salamander, and third one is the embryo of the tortoise, and next one is the embryo of the chicken, and next one embryo of the pig, and next one embryo of the cow and rabbit and man. Now when you observe the embryo of all these animals, you will see they are very similar to each other. So here you cannot differentiate the embryos of these animals. In the second stage, there are the little differences. Okay, now see the differences in the second stages of embryos of the all these given animals. And in third stage, the embryos completely differentiate from each other. Now observe carefully. The embryo of the fish, salamander, tortoise, chicken, pig, cow, rabbit and man. Okay, so this embryological evidence shows that the ancestor of all these animals are same. उनके जो एंसेस्टर थे वो क्या थे? सेम थे. ये एम्ब्रियोलॉजिकल एविडेंसेस से प्रूफ होता है. Comparative study of the embryonic developmental stages of the various vertebrates given in the picture shows that all embryos shows the extreme similarities during their initial stages. तो हमने क्या इसमें लर्न किया कि इनिशियल स्टेजेस में, शुरुआत के जो स्टेजेस में, एम्ब्रियोनिक जो डेवलपमेंटल स्टेजेस में इनिशियली दे शो वेरी large similarities, and those similarity decreases gradually, and after that slowly that similarity decreases. Similarities in the initial stages indicate the common origin of all these animals. अब जो हम लोगों को ये similarities दिखाई दे रही है, इस similarities से हमको क्या समझ में आता है कि इनका जो ओरिजिन है, मीन्स इनका जो इवोल्यूशन है वो एक सेम एनिमल से हुआ है. सेम एनिमल से ये सभी में डिफ्रेंशिएशन होने के बाद में ये डिफरेंट टाइप के स्पीसीज का फॉर्मेशन हुआ. ये एम्ब्रियोलॉजिकल एविडेंसेस से प्रूव होता है. नाउ नेक्स्ट, डार्विन्स थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन. अब हम लोगों को थियरीज देखना है. कौन सी थियरी? डार्विन्स थ्योरी ऑफ द नेचुरल सिलेक्शन. Darwin's theory of natural selection. Charles Darwin has collected innumerable specimens of the plants and animals and
Depending upon the observation of those specimens, he published the theory of the natural selection, which, which preaches the survival of the fittest. ओके जो चार्ल्स डार्विन जो है उन्होंने इनन्यूमरेबल स्पेसिमेन प्लांट और एनिमल के कलेक्ट किए और उसके बाद में उन्होंने ऑब्जर्वेशन करके उसका इन्फरेंसेस निकाला, कंक्लूज़न निकाला और वो अपना कंक्लूज़न उन्होंने पब्लिश किया और उस थियरी का क्या नाम दिया? नेचुरल सिलेक्शन। और उसका सेकंड नेम क्या है? सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट। तो अकॉर्डिंग टू दिस थियरी, इस थियरी के अकॉर्डिंग क्या है कि जो plants and animals, those plants and animal, those have capacity to, that have ability to to fight with the natural factors like wind, light, water, they can survive and others perished। क्या है इस थियरी के अकॉर्डिंग कि जो प्लांट और एनिमल नेचर में जो विंड का रेजिस्टेंस है, जो वाटर और जो स्पेस के लिए जो फाइट है, जो ये सभी में वो सभी को ओवरकम कर पाता है, वो सभी पे जीत हासिल कर पाता है, वही नेचर में सरवाइव करता है। और जो ऐसा नहीं कर पाते, दे डाई, वो हमेशा के लिए क्या हो जाते? वैनिश हो जाते उस अर्थ पे। इसी को हम क्या बोलते? थियरी ऑफ द नेचुरल सिलेक्शन। मतलब ऐसे गुड क्वालिटी की चीज़ें, दोज हैव द एबिलिटी टू फाइट विथ वाटर, okay, can survive in lack of water, can resist the currents of water, currents of the winds, they only can survive। तो जो गुड क्वालिटी के हैं सिर्फ वो सर्वाइव करते हैं और जो इसके अंदर ये एबिलिटीज़ नहीं होती, कैपेबिलिटीज़ नहीं होती, दे डाई। इसी को हम बोलते हैं कि थियरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन। मतलब अच्छी क्वालिटी की चीज़ों को नेचर भी सेलेक्ट करती है और जिसमें इस तरह की एबिलिटीज़ नहीं रहती है वो हमेशा के लिए क्या हो जाते? ख़त्म हो जाते, अर्थ पे वो प्रेजेंट नहीं रह पाते। For this purpose, Darwin had published a book titled Origin of Species। अब इसी पर्पज के लिए डार्विन ने एक बुक पब्लिश किया जिसका नाम है ओरिजिन ऑफ स्पीसीज, कि स्पीसीज का ओरिजिन कैसे हुआ। उस बुक में उन्होंने इस बुक का टाइटल रखा। While explaining the concept, Darwin says that all the organisms reproduce prolifically। All the organisms compete with each other in a life threatening manner। अब ये थियरी को एक्सप्लेन करते हुए उन्होंने समझाया कि ऑल ऑर्गेनिज्म compete with each other in the life threatening manner। हर एक ऑर्गेनिज्म compete करता है दूसरे एनिमल से। In this competition, only those organisms sustain which show the modification essential for winning the competition। और इस कंपटीशन में सिर्फ वही ऑर्गेनिज्म सस्टेन रहते हैं, अर्थ पे प्रेजेंट रहते हैं, दोज शो द मॉडिफिकेशन, जो अपने अंदर मॉडिफिकेशंस लाते हैं, और यू कैन से दोज ब्रिंग्स एडप्टेशन इन देम सेल्फ, अपने अंदर जो एडप्टेशंस लाते हैं, अपने अंदर जो चेंजेस लाते हैं, दे ओनली कैन सर्वाइव। ओके, तो उन्होंने इसमें क्या बताया कि जो ऐसे एनिमल्स होते हैं जो कंपटीशन के टाइम अपने अंदर मॉडिफिकेशंस लाते हैं, उस कंपटीशन को विन करने के लिए, जीतने के लिए, वही सिर्फ क्या होते? सरवाइव होते। हाउएवर बिसाइड्स दिस, जबकि इसके अलावा नेचुरल सिलेक्शन आल्सो प्लेज इम्पॉर्टेंट रोल बिकॉज nature selects only those organisms which are fit to live and the rest perish। जबकि इसके अलावा नेचुरल सिलेक्शंस एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है बिकॉज नेचर सेलेक्ट्स ओनली दोज, नेचर सिर्फ उनको ही सेलेक्ट करता है जो सरवाइव करने के लिए फिट होते हैं, एंड रेस्ट पेरिस, और जो बचे हुए जो सरवाइव करने के लिए फिट नहीं होते वो क्या हो जाते हैं? पेरिस हो जाते, नष्ट हो जाते।
Sustaining and selected organism can perform reproduction and thereby give rise to the new species with their own specific characters. और जो लिविंग ऑर्गेनिज्म जो ऑर्गेनिज्म है जो उसमें विन होते हैं उस कंपटीशन में सिर्फ वही रिप्रोडक्शन परफॉर्म करते हैं और वो अपने जैसे न्यू यंग वंस को न्यू स्पीसीज को बर्थ देते हैं एंड विद देयर ओन स्पेसिफिक कैरेक्टर और वो अपने जैसे ही कैरेक्टर वाले को क्या करते हैं बर्थ देते हैं। तो जो सरवाइव करते हैं वही अपने जैसे और अपने जैसे कैरेक्टर वाले यंग वंस को बर्थ देते हैं। हाउएवर सम ऑब्जेक्शन वेयर रेज्ड अगेंस्ट दिस थियरी। सम ऑफ द मेन ऑब्जेक्शंस आर बट इसमें जो उन्होंने थियरी दिया उसमें सम ऑब्जेक्शंस वेयर रेज्ड कुछ ऑब्जेक्शंस उठाए गए। जो उन्होंने क्या किया जो थियरी दिया उसका जो है क्रिटिसाइजेशन उसका हुआ उसको क्रिटिसाइज किया गया कि ये उसमें ऑब्जेक्शंस है। अब वो कौन कौन से मेन ऑब्जेक्शंस है दे आर गिवन ओवर हियर। फर्स्ट वन, द नेचुरल सिलेक्शन इज नॉट द ओनली फैक्टर रिस्पॉन्सिबल फॉर इवोल्यूशन। अब जैसे कि डार्विन थियरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन को डार्विन ने इवोल्यूशन के लिए रिस्पॉन्सिबल कंसिडर किया लेकिन ओनली इवोल्यूशन के लिए नेचुरल सिलेक्शन ही रिस्पॉन्सिबल नहीं है। इसके अलावा और भी फैक्टर हैं दैट कंट्रोल्स द इवोल्यूशन और ऑन दैट द इवोल्यूशन डिपेंड्स। नाउ सेकेंड, डार्विन डिड नॉट मेंशन एनी एक्सप्लेनेशन अबाउट यूजफुल एंड यूजलेस मॉडिफिकेशन। और डार्विन ने किसी भी टाइप के यूजफुल मॉडिफिकेशन एंड यूजलेस मॉडिफिकेशन को मेंशन नहीं किया। मतलब उन्होंने ऐसा अपनी थियरी में कुछ बताया नहीं कि ये उस एनिमल के लिए हेल्पफुल है ये मॉडिफिकेशन और ये हार्मफुल है, ऐसा कुछ भी एक्सप्लेन नहीं किया। देयर इज़ नो एक्सप्लेनेशन अबाउट द स्लो चेंज एंड अब्रप्ट चेंज। और उन्होंने ऐसा कुछ भी एक्सप्लेन नहीं किया कि ये चेंजेस स्लो चेंजेस हैं और ये अब्रप्ट चेंज है जो एकाएक अचानक होने वाले चेंज है। Irrespective of all these objections, Darwin's work on evolution has been milestone. Irrespective of all these objections, इस ऑब्जेक्शन को छोड़कर डार्विन्स का जो इवोल्यूशन पर वर्क था वो माइलस्टोन मील का पत्थर साबित हुआ, मतलब बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट। नाउ नेक्स्ट, इंट्रोडक्शन टू साइंटिस्ट चार्ल्स रॉबर्ट डार्विन। अब इनके बारे में देखेंगे जिन्होंने कौन सा थ्योरी दिया, डार्विन्स थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन और यू कैन से द सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट। इसी का दूसरा नाम सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट है। चार्ल्स रॉबर्ट डार्विन, इनका जो फुल नेम है चार्ल्स रॉबर्ट डार्विन, बॉर्न इन 1809 एंड डाइड इन 1882। 1882 में उनकी क्या हो गई डेथ। दिस इंग्लिश बायोलॉजिस्ट प्रपोज द थियरी ऑफ इवोल्यूशन। इस साइंटिस्ट ने, और ये कहाँ के थे, इंग्लैंड के। इंग्लिश बायोलॉजिस्ट लिखा ना तो इंग्लिश मतलब किससे रिलेटेड है, इंग्लैंड से, ब्रिटेन से। ही showed that all the species of living organism have been gradually evolved over the period of the thousands of years from the common ancestor। उन्होंने शो किया, बताया कि ऑल स्पीसीज ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, जितने भी स्पीसीज है लिविंग ऑर्गेनिज्म के, वो सभी के सभी धीरे धीरे थाउजेंड्स ऑफ ईयर से इवॉल्व हुए और एक कॉमन एंसेस्टर से इवॉल्व हुए। He proposed that principle of the natural selection is responsible for this evolution। और उन्होंने ये प्रपोज किया प्रिंसिपल कि नेचुरल सिलेक्शन ही इवोल्यूशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है। नाउ नेक्स्ट, लेमार्किज्म। ओके, लेमार्किज्म। नाउ द कॉन्सेप्ट गिवन बाय द लेमार्क इज कॉल्ड लेमार्किज्म। जो कॉन्सेप्ट किसने दिया, बैप्टिस्ट लेमार्क ने दिया, उसी को हम क्या बोलते हैं, लेमार्किज्म।
The Jean-Baptiste Lamarck proposed that morphological changes occurring in the living organism responsible for evolution. अब जो लेमार्क अकॉर्डिंग टू लेमार्क के अकॉर्डिंग जो मार्फोलॉजिकल चेंजेस होते हैं लिविंग ऑर्गेनिज्म में वो इवोल्यूशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। ओके, अभी इसके पहले क्या देखा हमने, ऑब्जेक्शन कि कौन सा जो है चेंजेस यूज़फुल है और कौन सा हार्मफुल है उस एनिमल्स के लिए, कौन सा मॉडिफिकेशन यूज़फुल मॉडिफिकेशन एंड यस नॉट यूज़फुल मॉडिफिकेशन के बारे में डार्विन्स ने कुछ नहीं बताया था। तो अभी जो लेमार्क है ये साइंटिस्ट ने क्या बताया कि जो मार्फोलॉजिकल चेंजेस होते हैं वही इवोल्यूशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। मतलब एक स्पीसीज से दूसरे टाइप की स्पीसीज या एक टाइप के एनिमल से दूसरे टाइप का इवोल्यूशन होता है या दूसरे टाइप का एनिमल जो बनता है वो उसके अंदर मार्फोलॉजिकल चेंजेस होने की वजह से होता है, उसके एक्सटर्नल अपीयरेंस में डिफरेंसेस आने की वजह से होता है और यही रिस्पॉन्सिबल होता है इवोल्यूशन के लिए। एंड द रीज़न बिहाइंड दोज मॉर्फोलॉजिकल चेंजेस इज द एक्टिविटी और लेजीनेस ऑफ दैट ऑर्गेनिज्म। और उन्होंने बताया ये जो मॉर्फोलॉजिकल चेंजेस है, जो एक्सटर्नल अपीयरेंस का जो चेंजेस है उस एनिमल में, वो चेंजेस उस एनिमल की एक्टिविटीज़ और लेजीनेस के ऊपर डिपेंड करता है। मतलब कि वो एनिमल एक्टिव है या लेजी है। जैसे आपने क्या है एक स्टोरी पढ़ी होगी इंग्लिश में कैमल की, किसकी स्टोरी पढ़ी है, कैमल की, कि ऐसा मतलब वो कैमल क्या बोलता है, हम बोलता है और उसकी वजह से क्या होता है उसके पीठ में कुबड़ आ जाता है। ऐसी स्टोरी आपने पढ़ी होगी। तो वो कैसा था, किसकी स्टोरी थी, एक लेजी कैमल की थी। ठीक है, तो वही चीज़ यहाँ पे भी वो क्या बता रहे हैं, तो वही चीज़ क्या है लेमार्क भी बता रहे हैं कि जो मॉर्फोलॉजिकल चेंजेस आता है उसकी वजह से इवोल्यूशन होता है और उसी की वजह से डिफरेंट डिफरेंट टाइप के लिविंग ऑर्गेनिज्म का डेवलपमेंट होता है और ये उस एनिमल की एक्टिविटीज़ और लेजीनेस के ऊपर डिपेंड करता है। मतलब कि अगर वो किसी स्पेशल ऑर्गन का ज़्यादा यूज़ करता है तो वो ऑर्गन में डेवलपमेंट होता है, और अगर वो एनिमल उस ऑर्गन का यूज़ नहीं करता तो धीरे धीरे वो क्या हो जाता है, स्लोली डिसअपियर हो जाता है। He called this concept as a principle of use or disuse of the organ। अब इसी को उन्होंने कहा कि क्या, प्रिंसिपल ऑफ यूज और डिसयूज ऑफ ऑर्गन, कि ऑर्गन का यूज और डिसयूज मतलब उसका इस्तेमाल और इस्तेमाल ना करना। Further, he said that the neck of the giraffe has become too long for the browsing on the leaves of the tall plant by extending their neck for several generations। और आगे उन्होंने कहा, फर्दर ही सेड आगे उन्होंने कहा दैट कि नेक ऑफ जिराफ हैज़ बिकम टू लॉन्ग, जो जिराफ की गर्दन है वो बहुत लॉन्ग हो गई, ज़्यादा लंबी हो गई, बिकॉज ऑफ द ब्राउजिंग ऑन द लिप्स ऑफ द टॉल प्लांट। जो टॉल प्लांट है, टॉल प्लांट से लीफ को ब्राउज करने के लिए ही उनकी गर्दन लॉन्ग हो गई। बाय एक्सटेंडिंग देयर नेक फॉर द सेवरल जनरेशन, द सिमिलरली shoulders of the iron smith have become very strong due to the frequent hammering movement। और क्या उन्होंने अपने इस थ्योरी को सपोर्ट किया, क्या कहकर कि जो ब्लैक स्मिथ होता है, जो लोहार होता है, उस लोहार का जो शोल्डर्स होते हैं, उसकी जो कंधे होते हैं, वो क्या होते हैं, स्ट्रांग होते हैं, क्योंकि वो लगातार क्या करता है, हैमरिंग करता है। उस हैमरिंग मूवमेंट की वजह से उसके शोल्डर्स जो होते, कंधे जो होते, वो स्ट्रांग होते। विंग्स ऑफ द बर्ड्स लाइक ऑस्ट्रिच एंड एमू हैज़ बिकम वीक ड्यू टू नो यूज। और उन्होंने क्या बताया, जो बर्ड्स, ओस्ट्रिच जो बर्ड है जिसका वेट सबसे ज़्यादा होता है, ओस्ट्रिच बर्ड जो है, और एमू जो बर्ड है, ये बर्ड्स अपने लेग्स को ज़्यादा यूज़ करते हैं, जबकि उनका जो विंग्स है वो वीक हो गया, कमज़ोर हो गया, क्योंकि उन्होंने क्या किया,
ज़्यादा फ्लाई नहीं किया, वो क्या करते हैं, ज़्यादा मूव करते हैं, लेग्स का इस्तेमाल ज़्यादा करते हैं, इसलिए उनके लेग्स जो है वो स्ट्रांग हो गए और जो विंग्स था वो क्या है, वीक हो गया। तो यहाँ पे उन्होंने क्या बताया, डिस यूज़ ऑफ द ऑर्गन, कि उन्होंने किसका यूज़ नहीं किया, विंग्स का, इसलिए वो वीक हुआ। और इसके पहले बिफोर दैट उन्होंने किसका एग्जाम्पल दिया, ब्लैक स्मिथ का, लोहार, ब्लैक स्मिथ मतलब लोहार। तो जो ब्लैक स्मिथ है उसका जो कंधा होता है वो क्या होता है, मजबूत होता है। क्यों मजबूत होता है, कि वो लगातार क्या करता है, हैमरिंग करता है, हथौड़ा चलाता है, घन चलाता है, इसलिए। The legs of the swimming, the legs of the birds like swan and the duck have become useful for swimming due to living in water। और जो स्वैन है और जो डक है, ये दोनों बर्ड्स का जो पैर होते हैं वो स्विमिंग में यूज़ होते हैं, ड्यू टू लिविंग इन वाटर, क्योंकि वो वाटर में रहते हैं। एंड स्नैक्स हैव लॉस्ट देयर डिजिट्स, snakes have lost their digits because of burrowing habits। और जो स्नैक थे उन्होंने अपने डिजिट को लॉस कर दिया, क्योंकि वो बरो में रहना स्टार्ट कर दिए, होल में रहना स्टार्ट कर दिए। तो यहाँ पे उन्होंने उस ऑर्गन का इस्तेमाल नहीं किया, इसलिए वो क्या हो गया, स्लोली स्लोली डिसअपियर हो गया। ऑल दिस एग्जाम्पल्स आर द टाइप ऑफ द एक्वायर्ड कैरेक्टर। ये जितने भी एग्जाम्पल्स है ये सब के सब एग्जाम्पल एक्वायर्ड कैरेक्टर के एग्जाम्पल्स है। अब एक्वायर्ड का क्या मतलब होता है, गेन करना, जो नेचुरली अपने अंदर नहीं होता है लेकिन उसको हम क्या करते, ऑब्टेन करते, उसको क्या बोलते हैं, एक्वायर्ड करना। ओके, तो ये किसके एग्जाम्पल है, एक्वायर्ड कैरेक्टर्स के। एंड ऑल ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन टू अनदर जनरेशन, और ये कैरेक्टर एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में ट्रांसफर होते हैं। दिस इज कॉल्ड एज द थियरी ऑफ इनहेरिटेंस ऑफ द एक्वायर कैरेक्टर और लेमार्किज्म। तो इसी को हम क्या बोलते हैं, थियरी ऑफ इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर कैरेक्टर, कि जो कैरेक्टर हमने एक्वायर किया वो नेक्स्ट जनरेशन में ट्रांसफर होना है। तो लेमार्किज्म हैज गिवन द टू theories, one is the use and disuse theory and second is the inheritance of the एक्वायर कैरेक्टर्स, एंड दिस इज कॉल्ड लेमार्किज्म। और इसी दोनों थियरीज को हम क्या बोलते हैं, लेमार्किज्म। ओके स्टूडेंट, नाउ अनम्यूट योरसेल्फ एंड इफ यू हैव एनी डाउट यू कैन आस्क टू मी। अजरा, हामिद अंसारी, हसन हुसैन, टेल मी स्टूडेंट, डू यू हैव एनी डाउट। शेख हिना, शेख रेहान, उनजेरा, डू यू हैव एनी डाउट्स। Okay, now I'm ending the meeting.